next lecture on a unique factorization domain. So first we understand the definition of a unique factorization domains. So what is the unique factorization domain? Let R be a integral domain with unity. So here it is an integral domain with unity. Then every non-zero, non-unit, so non-zero and non-unit element of R can be expressed as the product of finite number of irreducible element of R. It is my first condition. Every non-zero, non-unit element of R can be expressed as the product of finite number of irreducible element of R. For example, A is a non-zero, non-unit element, so it can be represented as P1, P2 and Pm, where all Pi's are irreducible element of R. Second, if A can be represented in this way, P1, P2, Pm, and also A can be represented in this way, Q1, Q2 and Qn, where Pi's and Qj's, these are irreducible element. Then M should be equal to N and Pi is associated to some Qj. So here Pi is associated to some Qj. For example, this Pi is associated to some, for example, it associated to Q3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ P1 Q1 ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਵੇ। P1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ P2 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो M ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਯੂਨੀਕ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z ਹੁੰਦਾ, what is Z? It is a set of integer. So this Z is a unique factorization domain. ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ Z ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੋਨ ਯੂਨਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਦਿਸ Z ਇਜ਼ ਏ UFD, ਯੂਨੀਕ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਯੂਨਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸੋ Z ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? 1 ਤੇ -1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨੋਨ ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ Z ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ -5 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ UFD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ -3 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, Z ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ -5 ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ Z ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ -6 ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਐਂਡ Z ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ -7 ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। तो पहला मैं Z स्केयर रूट ऑफ -5 की गल करांगा, फिर आपां चलांगे -6 वाली, एंड उस तो बाद असी अगे जड़ियाँ डेफिनेशन नू डिस्कस करांगे।
लो जी, नाउ आई राइट द फस्ट क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन नू आपां पहला लै लीए। सो दिस इज़ ए फस्ट क्वेश्चन। सो फस्ट क्वेश्चन च कौन है, Z स्केयर रूट ऑफ -5। सानू पता ये एलीमेंट किदां दे हुंदे। सो ये एलीमेंट होंगे a प्लस b स्केयर रूट ऑफ -5 और a ता b इट बिलोंग्स टू सैट ऑफ इंटीजर्स। सो ये बारे पता सानू कि ये एलीमेंट साडे कोल इस तरह के होंगे। असी प्रूव करना कि दिस इज़ नॉट ए UFD। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एलीमेंट है नॉन जीरो नॉन यूनिट, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल च नहीं लिख सकते, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिप्रजेंटेशन है वो यूनीक नहीं होएगी, यानी कंडीशन 1 ਜਾਂ ਤਾਂ सैटिस्फाई नहीं होएगी ਜਾਂ कंडीशन 2 ਜਿਹੜੀ है वो सैटिस्फाई नहीं होएगी। नाउ if I take solution of this question, if I take 46, this is from this, so 46 ਨੂੰ मैं लिख सकता 2 into 23। so this is a 46, तो इनू 2 गुना 23 ਦੇ ਨਾਲ मैं रिप्रजेंट कर सकता। और सानू पता ਜਿਹੜਾ 46 है, एक तो है ये नॉन जीरो और दूजा है नॉन यूनिट। अच्छा, नॉन यूनिट क्यों है ये बारे सोचो। नॉन यूनिट तो सिंपल असी ये देखिए कि ये यूनिट किहड़े-किहड़े आ, जां +1 आ जां -1 आ। इस तो इलावा बाकी सारे एलीमेंट साडे कोल नॉन यूनिट हो गए। तो 46 साडे कोल की हो गया, नॉन यूनिट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, तो 46 नूं मैं रिप्रजेंट किस ढंग नाल करता, वो मैं इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करता 2 into 23। एक रिप्रजेंटेशन हो गई। दूजी रिप्रजेंटेशन 46 नूं मैं लिख सकदा 1 + 3 स्केयर रूट ऑफ -5 into 1 - 3 स्केयर रूट ऑफ -5। ठीक है जी। आ दोनों एलीमेंट Z स्केयर रूट ऑफ -5 दे है, ये भी Z स्केयर रूट ऑफ -5 दा है। सो ये भी Z स्केयर रूट ऑफ -5 का एलीमेंट है, ये बारे कोई कन्फ्यूजन नहीं। जे दोनों एलीमेंट्स है वो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट करो, ये आ गया 1 + 9 into 5, 45 जमा 1 46। सो दिस इज़ 1 + 45 विच इज़ इक्वल टू 16, विच इज़ इक्वल टू 46। सो साडे कोल 46 दियाँ असी 2 रिप्रजेंटेशन जड़ियाँ वो लिखतियाँ। एक रिप्रजेंटेशन लिखती 2 into 23 एंड सैकेंड रिप्रजेंटेशन लिखती 1 + 3 स्केयर रूट ऑफ -5 into 1 - 3 स्केयर रूट ऑफ -5। नाउ वी चैक दैट जिहड़ा साडे कोल 2 है, this 2 is neither associate to, so this is neither associate to 1 + 3 square root of -5 and 1 - 3 square root of -5। सो ना तो ये पहले नंबर नाल एसोसीएट है, ना दूजे नाल। क्यों? क्योंकि एसोसीएट साडे कोल यूनिट की है 1 ते -1, तो 2 जिहड़ा है ये एसोसीएट किहदे नाल होएगा, 2 गुणा 1 नाल या 2 गुणा -1 नाल, ਜਾਂ तो 2 नाल होएगा ਜਾਂ -2 नाल होएगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि ना तो 2 ਇਹਦੇ नाल एसोसीएट है पहले एलीमेंट नाल, ना दूजे नाल। सो सिमिलरली तुसी 23 चैक कर सकते हैं। सो 23 भी नाइदर एसोसीएट टू दिस एलीमेंट और दिस एलीमेंट। ਇਹਦਾ मतलब 46 ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिकली फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो 46 does
not factorize uniquely into product of irreducible element तो असी इनू irreducible element दे विच रिप्रजेंट जिहड़ा है वो नहीं कर सकते सो अगर नहीं कर सकते इहदा मतलब साडे कोल ये UFD की कंडीशन नू सैटिस्फाई नहीं कर रहा जे UFD की कंडीशन नू सैटिस्फाई नहीं कर रहा सो इट इंप्लाइज z स्क्वायर रूट ऑफ -5 is not a UFD unique factorization domain सो दो स्टेटमेंट्स है और दोनों विचों असी एक स्टेटमेंट्स नू जिहड़ा आ वो सैटिस्फाई कराना और एक स्टेटमेंट नू सैटिस्फाई कराने दे लई साडे कोल जिहड़ा असी इस रिजल्ट नू प्रूव करता हुण चलिए इस तो नैक्सट दे विच सो नैक्सट अगर असी नैक्सट रिजल्ट की गल करिए सो नैक्सट रिजल्ट दे विच साडे कोल क्या हो रहा नैक्सट दे विच साडे कोल है z स्क्वायर रूट ऑफ -6 सो अगला साडे कोल आ गया सो विच इज़ ए क्वेश्चन नंबर 2 सो व्हाट इज़ ए क्वेश्चन नंबर 2 सो इन द क्वेश्चन नंबर 2 आवर प्रॉब्लम इज़ z स्क्वायर रूट ऑफ -6 सो ये एलीमेंट्स किद्दां दे हुंदे आ ये एलीमेंट आ गए a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ -6 a b बिलोंग्स टू z सो ये एलीमेंट इस तरह के आ गए बिल्कुल उस ढंग नाल ये यूनिट कौन आ एक आ गया -1 एक आ गया 1 एंड -1 these are only units of z square root of -6 ये साडे कोल इहदे यूनिट आ गए जे इहदे यूनिट्स आ गए हुण इहदे विच असी चैक करिए आई टेक ए एलीमेंट 10 नाउ व्हाट इज़ 10 इज़ ए नॉन यूनिट एलीमेंट क्यों क्योंकि यूनिट ये किहड़े आ एक है 1 एक है -1 तो 10 नू एक तो मैं रिप्रजेंट कर सकता 2 × 5 और दूसरा मैं इनू रिप्रजेंट कर सकता 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 एंड इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 दिस वैल्यूज आ गई सो मेरे को दो रिप्रेजेंटेशंस आ गया नाउ अगेन 2 इज नाइदर associate to 2 plus square root of -5 or 2 minus square root of -5. So similarly in case of 5 it means 10 cannot be factorized uniquely, so it implies 10 cannot be factorized uniquely into irreducible elements of z square root of -6 सो असी ये इनू जिहड़ा है वो रिप्रजेंट नहीं कर सकते यूनिकली इस करके साडे कोल इट इंप्लाइज z स्क्वायर रूट ऑफ
-6 is not a unique factorization domain. सो ये साडे कोल यूनीक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होएगी। सो 2 क्वेश्चन हो गए। सो तीजा क्वेश्चन बिल्कुल इसे ढंग नाल Z स्केयर रूट ऑफ -7 दा। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये साडे कोल सी Z स्केयर रूट ऑफ -7 सेम पैटर्न दे उत्ते। सो पहला असीं इहदे एलीमेंट देखिए a plus b under root this -7 ab belongs to z। ਇਹਦੇ यूनिट्स देखिए तो एक होएगा +1 दूजा होएगा -1। ठीक है जी। हुण फैक्टराइजेशन देखिए कोई तो ये मैं 16 लिया नॉन जीरो नॉन यूनिट एलीमेंट। सो इस 16 नूं मैं लिख सकदा 2 × 2 × 2 × 2। सो 4 बारी। सो हेयर दिस इज 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ -7 एंड 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ -7 करता फैक्टराइज। सो ये साढ़े कोल नंबर ही सेम नहीं है। इत्थे 4 एलीमेंट आ रहे, इत्थे 2 एलीमेंट आ रहे। उस तो इलावा असी इन्हों एसोसीएट भी नहीं कर सकते। जे उस एसोसीएट भी नहीं कर सकते तो यदा मतलब साढ़े कोल की आ गया कि 16 नूं असी यूनीकली सो 16 कैन नॉट बी फैक्टराइज uniquely as product of irreducible elements। ठीक है जी। सो इट implies z square root of -7 which is not a UFD यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो साढ़े को UFD नहीं होएगी। उस तो बाद साढ़े कोल नैक्सट जिहड़ा साढ़े कोल रिजल्ट आ जाता क्वेश्चन नंबर 4। सो उहदी स्टेटमेंट की सी कि अगर मेरे कोल R कोई UFD है तो उहदे विच हरेक इररेड्यूसिबल एलीमेंट साढ़े कोल प्राइम होएगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? सो इन UFD every irreducible elements is prime। ठीक है जी। सो ਉਹਦੇ हरेक irreducible एलिमेंट प्राइम होएगा। सो चेक करिए। मान लो R साढ़े कोल UFD है मान लो। सो दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो असी प्रूव करना कि इररेड्यूसिबल एलीमेंट इज प्राइम। सो प्राइम प्रूव करने लई सानू पता कि कोई भी असी सब तो पहला कोई इररेड्यूसिबल एलीमेंट लईए। ये साडे कोल है इररेड्यूसिबल एलीमेंट। तो असी इनू प्राइम प्रूव करना। सो प्राइम प्रूव करने लई आई टेक दिस P डिवाइड AB। P ने AB नू डिवाइड करता फॉर सम AB belongs to R। for some AB belongs to R।
तो असी प्रूव करना चाहते ਜਾਂ ਤਾਂ P A ਨੂੰ डिवाइड करे ਜਾਂ P B ਨੂੰ डिवाइड करे। अगर P A B ਨੂੰ डिवाइड कर रहा तो बाय डेफिनेशन दिस A B कैन बी रिटन एज P into K for some K belongs to R। ठीक है जी। सो सिंपल असी डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करते। नाउ इन अवर गिवन पार्ट P is irreducible element, so this P is irreducible element, clear? Now it involves two elements A and B, then we have three possibilities, either A unit or B unit or AB are non unit। मतलब कि साढ़े को तीन केस जिहड़े आ वो बन गए। सो केस नंबर 1 दे विच A साढ़े कोल यूनिट हो गया, B नॉन यूनिट हो गया। केस नंबर 2 दे विच B यूनिट हो गया और केस नंबर 3 दे विच A तो B दोनों नॉन यूनिट हो गए। ठीक है जी, तीन ही पॉसिबिलिटी है। इत्थे B यूनिट आ, इत्थे A यूनिट आ, इत्थे साढ़े कोल A जिहड़ा यूनिट है तो इत्थे B यूनिट यानी साढ़े कोल B नॉन यूनिट आ, इत्थे A नॉन यूनिट आ और इत्थे दोनों नॉन यूनिट आ। राइट, सो तीन पॉसिबिलिटीज़ आ गई। सो तिन्ना केस नूं असीं अलग अलग डिस्कस कर लईए। सो केस नंबर 1 A इज़ यूनिट। सानू पता ए बी दी वैल्यू आपां लई है P इंटू K टाइम। अगर A यूनिट आ तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जे A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सो दिस कैन बी रिटन एज A इनवर्स P इंटू K, दिस वैल्यूज। सो वट इट मीन्स? इट मीन्स दिस P डिवाइड B। तो पहले केस च P ने B नू डिवाइड करता। ठीक है जी। केस नंबर 2, सो A B इज इक्वल टू P K। इस केस च कौन यूनिट है? B। इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू P K B इनवर्स। तो इस केस दे विच P ने A नू डिवाइड करता। सो P डिवाइड B और P डिवाइड A। अगला केस, हुण साडे कोल दोनों नॉन यूनिट्स है। अगर दोनों नॉन यूनिट है तो A B मेरे कोल है P इंटू K दे बराबर। हुण K दियां दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकदियां। पॉसिबिलिटी नंबर 1 K यूनिट हो जाए और पॉसिबिलिटी नंबर 2 K जड़ा यूनिट ना होवे। सो सपोज मान लो, सपोज K इज यूनिट। मान लिया K यूनिट आ। जे यूनिट है तो ए बी इज एसोसीएट टू P। ए बी P नाल एसोसीएट हो गई और सानू पता P किदां दा एलीमेंट आ? इररिड्यूसिबल। और सानू ये भी पता इररिड्यूसिबल एलीमेंट सिर्फ इररिड्यूसिबल एलीमेंट दे नाल एसोसीएट हुंदा। इहदा मतलब साडे कोल जा तां A यूनिट होवे ते जा साडे कोल B यूनिट होएगा। सो इसका मतलब विच इज़ नॉट पॉसीबल। क्यों नहीं पॉसीबल? क्योंकि सानू A भी नॉन यूनिट दिता और B भी नॉन यूनिट दिता। इसका मतलब
जो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਕੇ ਇਜ਼ ਨॉन यूनिट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन यूनिट ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन यूनिट ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੀ ਨॉन यूनिट ਆ ਗਿਆ, B ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ K ਵੀ ਨॉन यूनिट ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A, B ਤੇ K ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन यूनिट ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? R 'ਚ। R ਕੌਣ ਆ? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है जी। जे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आ तो इनू असी फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरोड्यूसिबल एलीमेंट च लिख सकते हैं। सो ए नू मैं लिखिया P1 P2 करते जाइए PM। सो PI की है? इरोड्यूसिबल एलीमेंट। B नू लिखिया Q1 Q2 and Qn। so here साढ़े कोल Qi's are irreducible element। और तीजा ले लिए K। so K नू लिख लिया R1 R2 और करते जाइए RT। so साढ़े कोल ये भी irreducible element हो गए। जे irreducible element हो गए तो सानू पता AB which is equal to P into K। so it implies value put कर दियो P1 P2 करते जाइए PM। दूजे पासे Q1 Q2 Qn which is equal to small p, फिर आ गया R1 R2 so on up to RT। this values आ गया। और आप ये काम किहदे च कर रहे हैं? आप ये काम कर रहे हैं UFD दे विच। और UFD च एक्सप्रैशन की होनी चाहिए? यूनीक। जे एक्सप्रैशन यूनीक कदों होएगी? जदों P जिहड़ा है जा तां किसी न किसी PI नाल एसोसीएट होएगा जा P जिहड़ा है ये किसी न किसी QJ दे नाल एसोसीएट होएगा। तो ये जा PI नाल एसोसीएट हो गया जा P QJ नाल एसोसीएट हो गया। इट मीनस P जिहड़ा है इट डिवाइड्स A और P जिहड़ा है इट डिवाइड्स B। सो पहले केस दे विच A नू डिवाइड करेगा और दूजे केस दे विच B नू डिवाइड करेगा। ठीक है जी। क्यों कीता? क्योंकि PI नाल एसोसीएट आ ते जा साडे कोल QJ दे नाल एसोसीएट है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर साडे कोल 4। इस क्वेश्चन तो बाद साडे कोल नैक्सट अपने कोल आ गया लैमा। so this is again very important lemma। so what is this? in a ring it is very simple। in a ring R अगर मेरे को R कोई रिंग है तो यूनियन ऑफ असेंडिंग चैन chain of ideals केड़ी केड़ी आइडियल्स ले लिए? A1 सब तो छोटा, A2 कंटिन्यू करिए A3 A4 एंड सो ऑन। सो दीज आर आइडियल्स ऑफ R। इन्हां दी जिहड़ी यूनियन होएगी वो भी साडे कोल आइडियल ऑफ R आ जाएगी। ठीक है जी। मतलब असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल पई तुहाडे कोल
और असी प्रूव करना कि इन्हां दी जिहड़ी यूनियन है दैट इज़ अगेन आइडियल ऑफ आर। सोल्यूशन या प्रूफ, let A which is equal to union of AI where I is running from 1 to infinity। सो असी आइडियल प्रूव करना। आइडियल प्रूव करन दे साडे कोल दो स्टेटमेंट हुंदियां। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हुंदी जी, दोनों का डिफरेंस लैना, फिर उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन वाले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की आपां गल कर लीए। So I take two element, let x y it belongs to A। So what it means? So it means x यूनियन च चला गया। अगर यूनियन च चला गया तो किसी न किसी AI नू बिलोंग करेगा। So it implies x belongs to AI फॉर सम वाई, किसी न किसी इधर वाई जड़ा है इट बिलोंग्स टू ए जे फॉर सम जे। इन्हां दोनों चों एक बड़ा होएगा एक छोटा होएगा। सो आई टेक वी टेक आई इज लेस देन इक्वल टू जे। So it implies AI is subset of AJ। So it implies X Y दोनों AJ नू बिलोंग कर गए। ठीक है जी। अगर AJ नू बिलोंग कर गए, AJ की है आइडियल। सो X माइनस वाई इट बिलोंग्स टू AJ। AJ इज सबसेट ऑफ A क्योंकि यूनियन है। तो साढ़े को आ गया x माइनस वाई इट बिलोंग्स टू A। सो साड़ी फर्स्ट प्रॉपर्टी असी प्रूव कर दी। सैकंड प्रॉपर्टी क्या है, एक्स आर या आर एक्स। तो एक्स असी लिया सी जिहड़ा साडे कोल एक्स सी वो ए जे च चला गया। ठीक है जी। ए आई दे विच भी आपां यूज़ कर सकते हैं। सो सिंस एक्स दी गल कर लीए, एक्स इज़ एलीमेंट बिलोंग्स टू ए आई। ठीक है जी। आर लै लिया सी कैपिटल आर दे विच, और क्योंकि ए आई आइडियल है तो एक्स आर बिलोंग्स टू ए आई, और ए आई सबसेट है ए दा। सो इट इम्प्लाइज x r belongs to A। and similarly r x belongs to A, then it means A is ideal of R। ठीक है जी। तो साडे कोल जिहड़ी सीक्वेंस दी आपां गल कर रहे सी असेंडिंग सीक्वेंस दी, वो साडे कोल आइडियल बन गई। उस तो अगला साडे कोल रिजल्ट है कि जिहड़ी सीक्वेंस दी आपां गल कर रहे सी आइडियल, जदों आपां प्रिंसीपल आइडियल डोमेन दे विच काम करांगे इन PID आ, तो वो सीक्वेंस किते ना किते जाके टर्मीनेट हो जाएगी। टर्मीनेट मीन्स किते ना किते जाके फाइनाइट स्टैप तो बाद वो रुक जाएगी। मतलब एवरी असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ आइडियल्स must be terminate after finite steps of number of steps, या finite steps भी लिख सकते हैं, finite
नंबर्स ऑफ स्टेप्स। ठीक है जी। तो कोई भी असेंडिंग सीक्वेंस है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स दे विच टर्मीनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, पर कदों, जदों आर साडे कोल प्रिंसीपल आइडियल डोमेन होवे। असी पिछली थ्योरम दे विच, पिछले लैमे च हुणे प्रूव करके हटे हैं। क्या प्रूव किया कि A1 पार्ट ऑफ A2 पार्ट ऑफ A3 अगर साडे कोल आइडियल्स है आर दे, सो दिस इज ए गिवन चेन ऑफ आइडियल्स, चेन ऑफ आइडियल्स। अगर ये गिवन चेन ऑफ आइडियल्स है तो साडे कोल की हुंदा, इन्हां दी जिहड़ी यूनियन है वो भी आइडियल बन जाती है। सो लेट ए विच इज़ ए यूनियन ऑफ ए आई, सो दिस इज़ ए आइडियल ऑफ आर। सो आर बारे तुहानू पता कौन आ, PID, प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। ठीक है जी। और प्रिंसीपल आइडियल डोमेन की की प्रॉपर्टी होंदी है कि इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट्स। तो नैचुरली ए भी जनरेट करेगा। सो अगर ए जनरेट करेगा then it implies A is generated by some single element, and this is for some A belongs to R. So ये क्यों पॉसिबल होया, क्योंकि R साडे कोल PID है। तो जनरेट कर गया तो साडे कोल इस तरह का बन गया। नाउ इट implies what it indicate, A belongs to generated by A। जनरेटेड बाय A कौन है, कैपिटल A, और कैपिटल A कौन है, यूनियन ऑफ AI। तो A किते न किते AI च चला गया। सो इट इम्प्लाइज A belongs to AI for some I। सो किसी न किसी आई दे विच बिलोंग कर गया, फॉर सम आई। अगर किसी न किसी आई दे विच बिलोंग कर गया, क्योंकि ए आइडियल है, याद रखना, जिस ए आई आइडियल है तो ये मल्टीपल भी इन बिलोंग करनगे। आइडियल च हुंदा ना आर ए बिलोंग्स टू ए आई, सो ये मल्टीपल भी इन बिलोंग करनगे। सो जनरेटेड बाय ए साडे कोल इज़ ए पार्ट ऑफ ए आई, इन बिलोंग करनगे। जे बिलोंग करनगे, सो वट इट मीनस, इट इज़ ए विच इज़ पार्ट ऑफ ए आई। जे ए पार्ट ऑफ ए आई है, सो इट मीनस ए इज़ इक्वल टू ए आई, क्योंकि ए आई तो वह सबसैट है ही है, पर साडे कोल ये जड़ा है ए जड़ा वो भी ए आई का सबसैट बन गया। जे ए आई का सबसैट बन गया, दोनों बराबर हो गए, यदा मतलब फाइनाइट टर्म तो बाद साडे आइडियल दी चेन जिहड़ी है वो टर्मीनेट हो गई। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट, विच प्रूव्स आवर रिजल्ट। सो इस चीज़ नूं आपां याद रखना। हुण इस तो अगे आपां चलीए इस तो नैक्सट थ्योरम दे विच। सो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आ गए। तो अगला साडे कोल क्या क्वेश्चन आ जांदा, अगला आ जांदा कि कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलीमेंट PID च लईए तो असी कोई इररोड्यूसिबल एलीमेंट लभ सकते हैं सच दैट डिवाइड्स ए, मतलब वो उन्होंने डिवाइड कर जाएगा। किहदे विच ये आपां गल कर रहे हैं इन्ने PID। सो वट इज़ द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट असी ऑलरेडी लिखी हुई है, एक बारी फिर देख लेने।
पहला क्वेश्चन, दूजा, तो साढ़े को आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। सो 7 की स्टेटमेंट नू आपां पढ़िए। स्टेटमेंट है फॉर एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलीमेंट। कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलीमेंट लईए ए इन PID R, then there exists a irreducible element P such that P divide A। यानी irreducible element नू कौन डिवाइड कर रहा, जिहड़ा A नू नॉन यूनिट एलीमेंट नू कौन डिवाइड कर रहा, irreducible एलीमेंट डिवाइड कर रहा। सो इहदे विच असी पिछले रिजल्ट जिहड़े आ वो अप्लाई करांगे। सो आपां उस रिजल्ट वाल नू चल पईए। सो इट वॉज ए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की आपां गल करिए। सो वट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7? सो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। सो R सानू PID दिती है, पहली गल। सो स्टैप नंबर 1, R इज़ PID, मतलब प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। और A साडे कोल R च लिया, और A साडे कोल किदां दा एलीमेंट आ, नॉन जीरो, नंबर 2 ते नॉन यूनिट। सो ये दो कंडीशन नू सैटिस्फाई करदा, नॉन जीरो ते नॉन यूनिट। साडा मकसद क्या है कि असी कोई इररिड्यूसिबल एलीमेंट लभना जिहड़ा इनू डिवाइड कर दे। ठीक है जी। मान लो इस A दी गल कर रहे थे, इट इज़ जनरेटेड बाय A। तो नैचुरली क्योंकि PID है, कोई भी इस एलीमेंट नाल जनरेट करेगा तो वो आइडियल होएगा। सो दिस इज़ ए आइडियल ऑफ R। सो ये बारे तो कोई दो राय नहीं है। हुण अगली गल, अगर ये मैक्सिमल है, इफ I इज़ मैक्सिमल, तो सानू पता इट इज़ जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलीमेंट, दैन इट मीनस A साडे कोल इररिड्यूसिबल हो जाएगा। जे A इररिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। दूजा सानू पता A नू डिवाइड भी करदा, तो साडे कोल विच प्रूव आवर रिजल्ट, विच प्रूव आवर रिजल्ट। तो साडा रिजल्ट प्रूव हो गया पहले स्टैप च। हुण अगर ये मैक्सिमल नहीं है, अगर तो मैक्सिमल हो गया तो साडी गल खत्म हो गई। उस तो अगे चलिए, हुण आपां मन के चलिए कि इफ इट इज़ नॉट मैक्सिमल, इफ I is not maximal, not maximal, ठीक है। जे तो मैक्सिमल सी तो यदा नाम असी की रखे, I रखे कि I1। सो इनू असी I1 लिख लीए ताकि असी सीक्वेंस बनानी तो वो ऑर्डर दे विच हो गए। अगर I1 मैक्सिमल नहीं है, ठीक है जी, तो नैचुरली इस तो बड़ा कोई होर आइडियल होएगा, क्योंकि मैक्सिमल नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट सम आइडियल I2 which is not equal to R such that I1 is properly contained in I2, क्योंकि I2 R के बराबर नहीं है। इट इज़ अगेन प्रॉपरली कंटेन्ड इन R। ठीक है जी। हुण क्योंकि PID आ, तो I2 भी किसी एलीमेंट नाल जनरेट कर रहा होना। उस एलीमेंट का नाम असी रख लीए P2। लेट I2 विच इज़ जनरेटेड बाय सम P2।
ठीक है जी, फॉर सम P2 बिलोंग्स टू R। क्लीयर हो गया, ठीक है जी। हुण फिर साडे कोल दो कंडीशनस आ गई कि जा तो I2 मैक्सीमल है जा I2 मैक्सीमल नहीं है। सो अगर ता मेरे कोल I2 मैक्सीमल है तो ਇਹਦਾ मतलब P2 ਜਿਹੜਾ है ये इररेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया। ठीक, इररेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया एक चीज़। दूजी चीज़, इस रिजल्ट की मदद दे नाल मैं लिख सकदा जनरेटेड बाय A विच इज सबसैट ऑफ जनरेटेड बाय P2 एंड इट इंप्लाइज P2 डिवाइड A, क्योंकि P इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो फिर मेरा रिजल्ट जेड़ा प्रूफ हो गया। अगे चलिए, हुण अगली गल, मान लो दिस I2 इज नॉट मैक्सीमल। तो अगर तो मैक्सीमल सी तो असी रिजल्ट प्रूव करता। हुण फिर साडे कोल ओही सिचुएशन आ गई कि ये मैक्सीमल नहीं है। जे मैक्सीमल नहीं है तो देयर एग्जिस्ट आइडियल I3 which is not equal to R such that I2 which is properly contained in I3 which is properly contained in R। ठीक है जी। हुण क्योंकि PID है सो I3 जेड़ा है it should be generated by P3 for some P3 belongs to R। clear, for some P3 belongs to R। इत्थों आपां नूं याद आ I भी आ जाएगा, I1 भी आ जाएगा। हुण फिर दो कंडीशंस बन गई। इफ I3 is maximal, if I3 is maximal then it implies P3 is irreducible। irreducible, जे मैक्सिमल है तो इररेड्यूसिबल हो जाएगा। जे इररेड्यूसिबल हो गया then it implies by given result generated by A which is part of P3 which implies P3 divide A। clear, सो साडे कोल ये रिजल्ट असी जेड़ा है प्रूव कर देवांगे। हुण उस तो अगे चलिए, I3 तक हो गया। अगर I3 मैक्सीमल नहीं हुंदा तो साडे कोल I4 आएगा। सो असी कंटिन्यू करते जाना। सपोज I3 is not maximal ideal of R। ठीक है जी। सो कंटिन्यू द प्रोसेस, जे मैक्सीमल नहीं है तो इस प्रोसेस नूं असी कंटिन्यू करते जाइए। सो कंटिन्यू द प्रोसेस, तो सानू पता PID च जिहड़ी चेन ऑफ आइडियल्स है ये किते ना किते टर्मीनेट होएगी। सो कंटिन्यूज द प्रोसेस, सो चेन of ideals, ascending ideals must be terminate
must be terminate after finite number of steps. Finite number of steps. सो किते ना किते जाके ये चेन ने रुकना ही है, और जिथे रुकेगी वो साढ़े कोल मैक्सिमल आइडियल हो गया। से एट आई एन विच इज़ जनरेटेड बाय पी एन। ठीक है जी। सो पी भी लिख सकते हैं ਜਾਂ इनू जनरेटेड बाय पी लिख दईए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स I1 पार्ट हो गया I2 का, I2 पार्ट हो गया करते जाइए IN का, और दिस इज पार्ट हो गया R का। सो इट मीन्स जनरेटेड बाय A इज पार्ट ऑफ सबसैट, प्रॉपर सबसैट ऑफ P, क्योंकि IN साढ़े कोल मैक्सिमल आइडियल है। अगर मैक्सिमल आइडियल है तो P साढ़े कोल इरेड्यूसिबल होएगा। अगर P इरेड्यूसिबल है और इत्थों P A नू डिवाइड भी कर रहा, तो P इरेड्यूसिबल भी हो गया और A नू डिवाइड भी कर गया। सो इट मीन्स विच प्रूव आवर रिजल्ट भी अगर कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स है तो वो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जिहड़ा है वो साडे कोल देयर एग्जिस्ट ए इरेड्यूसिबल एलिमेंट, सो विच डिवाइड आवर ए, वो ए नू डिवाइड करेगा।